Welcome students, welcome to computer class. I am your teacher Nitish Kumar. So this is the video for class 9. Unit 3. We already complete your Unit 1 and Unit 2 in our previous videos. So today we already start the Unit 3. This is the part 2 of the Unit 3 video. Word processing basic level. This is the chapter name, or you can also say this is the name of the unit, word processing basic level. In our previous class we already read about how to start, how to take a new page, how to save a program, how to open, select text and many more. This is the same introduction which I already give you in the previous video. So I don't think so it's important to you. That is our syllabus which we have to read. So we already complete our session 3. Today we start our session 4, and I hope I have to complete the bullets and so many other session also. Now we have the step one more time. How can we start the MS Word in Windows 7? This is the logo. Remember one thing which I told you in previous class also. Always remember the logo. This will help you when you open the MS Word. लोगो हमेशा आपको हेल्प करेगा उसको ओपन करने में. बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग मेन फाइल को ही डिलीट कर देते हैं. ऐसा आप लोगों ने लैब में भी बहुत बार इस प्रॉब्लम को फेस किया होगा. ऑन दैट टाइम वी आर यूजिंग द सेम लोगो. उस समय क्या होता है कि फाइल का नाम भी दूसरा हो जाता है, कभी कभी दूसरे फाइल से भी खोलना पड़ता है. तो उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रिमेंबर द लोगो. इट विल हेल्प यू ऑलवेज व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द MS Word विंडो. नाउ द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप, click on start button. Everybody know where we have the start button. On this area we have the start button. On this area click on the all program. Then when we click on the start button we have a list. जब हम start button दबाते हैं एक लिस्ट खुल जाता है. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम. फिर उस लिस्ट में जाके हम लोग किसको प्रेस करेंगे? ऑल प्रोग्राम को. ऑल प्रोग्राम क्लिक करने के बाद वी हैव अनदर लिस्ट एट दैट साइड. उसमें हम लोग को क्या करना है? वी हैव टू फाइंड एंड सेलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. हमको किसको सेलेक्ट करना है? फाइंड एंड सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन क्लिक ऑन MS Word. और फिर उसमें हमको सबसे लास्ट में MS Word मिलना चाहिए एंड देन वी क्लिक ऑन MS Word. When we doing all these things we have a new windows of MS Word. Now we have to move forward. What is left in this chapter? So we already left how to check the spelling and grammars, edit a document, copy, cut, find. Okay, so I am starting the video from here. So for doing this, as we all know, we are starting a previous open a previous work which I already created for you. For example, name. Name is not here. Okay, no problem. So I am happy with this one. इसी के साथ काम करते हैं. Edit a document. So for editing a document, first of all you have to write something. For example, this is the, I'm increasing the size for you. This is the video for class 9. Today we read MS Word in computers. Okay, so मैंने एक मैसेज लिखा है बस ऐਵੇਂ ही दिखाने के लिए आपको. Now how can we select a text? Okay, so I am starting edit a document.
For as you all know, for doing anything, as we already talked in a previous video, किसी भी काम को करने के लिए सेलेक्ट करना जरूरी है. सो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराएंगे. फॉर सेलेक्टिंग अ वर्ड, क्लिक 2 times, 1 2. For selecting a paragraph, click 3 times, 1 2 3. Now you see the whole paragraph is selected. Okay, so this is the way how can we select a file and how can we select a line or word or a paragraph. So when you select any one of them, for example I want only this is the, then I am select only this is the. So how can we select the this is the only? So first of all you have to click on the last of this line. For example our cursor is here. अब मान लीजिए कर्सर यहाँ था, तो हम लोग को यहाँ कर्सर को लाना है. For this type of work, click here. मैंने यहाँ क्लिक किया है. होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द लाइन. माउस बटन को ड्रैग करके इस पे ले आए हैं. एंड नाउ हाउ कैन वी डू आवर कॉपी वर्क? सो फॉर कॉपी वर्क यू हैव टू गो इन होम टैब. वेयर वी हैव टू गो? वी हैव टू गो इन होम टैब एंड चूज कॉपी ऑप्शन. आई एम क्लिकिंग ऑन द कॉपी ऑप्शन. सो इज देयर एनी टाइप ऑफ चेंज इन द पेज? कोई भी तरह का चेंज होता है क्या पेज में? नो ना. सो कॉपी करने से किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा. अब हम कॉपी कर लिए हैं तो उसको पेस्ट करते हैं. पेस्ट कहाँ होगा? वी हैव द पेस्ट कॉपी ओनली एट देयर वेयर वी हैव द कर्सर. जहां मेरा कर्सर होगा वहीं पे हम पेस्ट करेंगे. वी हैव द पेस्ट कॉपी ओनली एट देयर वेयर वी हैव आवर कर्सर. सो हु इज आवर कर्सर? द ब्लिंकिंग लाइन इज ऑलवेज आवर कर्सर. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट ऑल दिस थिंग बिटवीन दिस टू लाइन. वर्ड इन कंप्यूटर के बीच में मेरे को चाहिए, तो मैंने यहाँ कर दिया है. इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं और इस जगह पे मुझे वो प्रिंट चाहिए, मतलब कि वो पेस्ट चाहिए. सो मैं यहाँ चला गया हूँ. आई एम सिंपली क्लिक द पेस्ट ऑप्शन वेयर वी हैव द पेस्ट ऑप्शन इन होम टैब. क्लिपबोर्ड ग्रुप, जहाँ पे हमको कॉपी मिला था वहीं पे हमको पेस्ट भी मिलेगा. होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिक ऑन पेस्ट. नाउ यू सी आई हैव द पेस्ट. रिमेंबर वन थिंग, अगर हम कॉपी एक बार करते हैं तो हम उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो यूज द शॉर्टकट ऑफ पेस्ट, Ctrl+V. ओके, नाउ द कट टाइम. नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस वन. मैंने इसको या फिर मैं लास्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ. आई एम सेलेक्टिंग कंप्यूटर्स. Now I am select the cut option. Where we have the cut option? In home tab, clipboard group. I am clicking on the cut. Now is there any type of change? Yes, there is a change. Computer is now gone. जब हम लोग this is the को कॉपी किए थे तो क्या वो गायब हुआ था? नहीं गायब हुआ था. हुआ था क्या? नहीं हुआ था. सो जब हम कट करते हैं तो वो अपने जगह से चला जाता है. ओके, नाउ वी हैव द कट ऑप्शन. व्हेन वी डूइंग द कट, द कंप्यूटर इज गॉन. एंड नाउ आई वांट द पेस्ट ऑप्शन विद दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई ऑलरेडी कट फ्रॉम दिस वन. सो हाउ कैन वी पेस्ट इट? व्हेन द रूल इज सेम. व्हेन वी हैव द वेयर वी हैव द पेस्ट ऑप्शन, वेयर वी हैव द पेस्ट कॉपी, वेयर वी हैव द कर्सर. जहां हमारा कर्सर होगा वहीं हमें पेस्ट मिलेगा. सो हमने कर्सर को नीचे कर दिया है. फिर से क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन. नाउ यू सी कट में भी रूल सेम है. इफ यू डूइंग वन टाइम कट, यू हैव टू टेक मल्टीपल टाइम पेस्ट. ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी कट, पेस्ट एंड देन दिस इज द वे. नाउ थर्ड ऑप्शन और द थर्ड सेशन, फाइंड एंड रिप्लेस. सो फॉर गोइंग फाइंड एंड रिप्लेस, you have to go in home tab, find group. Where we have the find group? In editing group we have the find option. I am clicking on the find. When I click on the find, you see a dialog box is open. And then when you write the something, for example I am writing the computer. Now you see all computer is in yellow color. आप देख सकते हैं, हो रहा है ना? So this is the way, और दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द कंप्यूटर. और कितने कंप्यूटर हैं, उसके साथ क्या है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको. ओके, सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द फाइंड ऑप्शन. नाउ रिप्लेस ऑप्शन.
रिप्लेस ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई वर्ड है जो मल्टीपल टाइम गलत हो गया है या मल्टीपल टाइम आया है, लेकिन हम उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कहाँ पर है। तो इस टाइप के सिचुएशन के लिए हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करेंगे, क्योंकि हमको उस पूरे पेज में, मान लीजिए ये तो 3 पेजेस का था, 50 पेजेस के डॉक्यूमेंट में किसी का नाम गलत हो गया, लेकिन हमको पता नहीं कि उसका नाम कहाँ है। तो इस तरह से सिचुएशन में हमको ये तो पता था कि उसका नाम गलत क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो फिलहाल हम कंप्यूटर सही लिखे थे, तो हम इसको कंप्यूटर्स कर देते हैं, ठीक है, और इसके जगह पे हम सिर्फ कॉम लिखना चाहते हैं, ठीक है, माय मिस्टेक, राइटिंग कॉम एंड रिप्लेस ऑल। नाउ यू सी 5 टाइम्स हमने चेंज किया है। चलिए देखते हैं क्या काम हुआ है। अब आप देख सकते हैं चेंज हो गया ना। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी यूज द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। नाउ check spelling and grammar option. So where we have our spelling and, so this is our text alignment, sorry, my mistake. Now we check the spelling and grammar. So how can we check the spelling and grammar? For doing this work, for doing the spelling and grammar, you have to go in a review tab, or if you're not going in a review tab, it's also okay. Where okay, I'm showing for this effect, I'm writing a wrong spelling of read. Okay, I'm writing a wrong spelling of read. Oh, it's have a meaning. Okay, this is the way for checking the spelling and grammar. So I'm writing a wrong spelling. Now if you have the red line, it's also have the meaning. Okay, now you see now we have a red curve line. Why the red curve line? The red curve line show me this is a wrong spelling. जब भी हमको ऐसा रेड कर्व लाइन्स आता है तो हम क्या करते हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। When we have this red curve line, that means there is a spelling mistake. And there is one more thing, when we have the blue curve line, okay, there is no blue curve line, okay, no problem, फिर ले आते हैं। Okay, no problem. So when we have the spelling mistake, then we have the red curve line, and when we have the grammar mistake, then we have the blue curve line. So there is a spelling mistake, so there is a red curve line. Now I want to correct it. So इसको कैसे हम लोग correct करेंगे? For correct this doing or for correct this thing, you have to simply right click on this word. क्या करना है? Right mouse button दबाना है, and then there is the right spelling of color. Or remember one thing, in computer only, the spelling of color is COLOR. Okay. In other word, the spelling of color is COLOUR. Okay. So क्या होता है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही आपको स्पेलिंग जो है कलर का COLOR मिलेगा। Okay. So this is the way how can we use the grammar effect. Now I want to, if sometime we also have the synonyms, और synonyms तो सब लोग जानते ही होंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है सन का synonyms लिखना है। सो हमको अगर हेल्प चाहिए, इफ वी वांट द हेल्प फॉर राइटिंग synonyms ऑफ सन, तो सिंपली सेलेक्ट इट। क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट माउस बटन, क्लिक ऑन राइट माउस बटन एंड गो इन अ synonyms ऑप्शन। ओके, एंड गो इन ट्रीजर ऑप्शन। आपको कुछ synonyms मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सन का synonyms इसके पास अवेलेबल नहीं है फिलहाल, तो चलिए कुछ और का देखते हैं हम लोग। इसके लिए वो इंटरनेट मांग रहा है। हमने वाटर लिखा है, चलिए इसका synonyms देखते हैं मिलता है या नहीं।
Now you see there is so many synonyms of water. वाटर का बहुत सारे synonyms हमको मिल जाते हैं विद उसका प्रोनाउंसिएशन. यहाँ पर आप उसको स्पीक करके भी वो आपको बताएगा, मीन्स उसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो इसको प्रोनाउंस करेगा यहाँ पर. सो देयर इज सो मेनी थिंग्स वी आल्सो अवेलेबल इन MS वर्ड जो हमें हेल्प करता है. नाउ वी मूव फॉरवर्ड. bullets and numbers. How can we use the bullets and numbers? For example, I want to use the bullet on this one. So for doing this type of thing, मान लीजिए अगर हम पहले से बुलेट्स नहीं दिए हैं तब हमको इसको सेलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर हम पहले से बुलेट दिए होते तो इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम नहीं दिए थे इसलिए हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं इसको. नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द बुलेट ऑप्शन. आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. ओके, आई एम चूजिंग दिस वन. ओके, आई एम चूजिंग दिस वन. ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर विद द चेंजिंग ऑफ द टेक्स्ट कलर. जब हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे साथ में उसका कलर भी चेंज हो जाएगा. ओके, so this is the way how can we use the bullets. Remember one thing, this is the same way how can we use the numbers also. For doing numbers, simply select it and use the numbers, anything which you want, A B C D 1 2 3 1 2 3 in Roman. There is so many way where you use the numbers and bullets. Now remember one thing, यहाँ पर कहाँ तक गया है 6 तक, मुझे आगे 7 चाहिए. क्या करना है, लास्ट में सिंपली क्लिक करना है, press the enter. Now you see the 7 is coming. Now we want the 7. अब यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, मैंने लिखा है. Now again we have the 8. So ये इस तरह से चलता जाएगा जितना भी हमको चाहिए होगा. Okay. So this is our bullets and numbers. Now text alignment. For doing text alignment, I want to do one thing before this thing. Decrease the size of the text. मैं इस size को थोड़ा सा decrease कर रहा हूँ ताकि मैं text alignment अच्छी तरह से दिखा सकूँ आपको. Now, by default we start writing from the left to right. By default we start writing from left to right. So this thing is known as left alignment. जो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट. एंड क्या होता है कि कभी कभी स्टाइल के लिए या फिर कुछ चीज़ों को हम लोग राइट से भी लिखना शुरू कर सकते हैं. सो दिस थिंग क्या कहलाएगा, राइट अलाइनमेंट. नाउ यू सी इट्स ऑल थिंग गोइंग इन राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड, अगेन राइट साइड. देयर इज ऑल्सो द शॉर्टकट फॉर द लेफ्ट अलाइनमेंट CTRL+L and for right alignment CTRL+R. And we also have the center alignment. Now you see this is our center alignment. There is also shortcut for center alignment CTRL+E. So this is the text alignment. Now paste formatting. What is paste format? That means you can use the font on your टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर टेक्स्ट, आई एम सेलेक्टिंग इट, पहले सेलेक्ट है. इसमें हम लोग कौन से फॉर्मेट का या फॉन्ट का यूज करेंगे. सो फॉर यूजिंग द सिंपल फॉन्ट वी कैन यूज बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन. ओके, वी हैव सो मेनी डिफरेंट डिजाइन ऑफ अंडरलाइन ऑल्सो. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ अंडरलाइन. We can also change the color of underline, but I don't want the underline with this one, so I mean. अब क्या है, सिर्फ एक लाइन पे कोई एक इफेक्ट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम दोनों इफेक्ट लगाएं. ओके, मैं इस पे कुछ और इफेक्ट लगाऊंगा. सो दिस इज द नोन एज सिंपल फॉर्मेटिंग या सिंपल फॉन्ट. नाउ आई वांट द फॉन्ट ऑन माय टेक्स्ट. अब हमको फॉन्ट चाहिए जो हम फॉन्ट फैमिली से चूज करेंगे. फॉर डूइंग दिस वन यू नो ऑल्सो we have to select this one. ऐसा करने के लिए भी select करना जरूरी है. Now I am selecting the text, go in a font family, choose the font. अब हम लोग font choose कर रहे हैं. There is so many fonts, you can use any one of them. As you see, there is so many fonts. I am using any one of them. Now you see, this is a different type of font. If you want to give some more style, click simply go here and choose the style for this one. आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो. उसके साथ साथ हम लोग को और भी बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, जैसे आउटलाइन है, शैडो इफेक्ट है,
रिफ्लेक्शंस हैं, ओके। सो देयर इज बहुत सारे और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं जो हमको वहाँ मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, सिंपली सेलेक्ट योर टेक्स्ट, go in a color option and change the color. Now you see I am change only color of this one, only this one's color is changed and this one is not changed. So this is the way how can we use the format and the font. Now how can we use the symbols? This is the last topic for this video. That means we have one more video for the unit 3. So how can we use the symbols? So for using symbols and why we use the symbol, होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को सिंबल्स यूज करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमको कीबोर्ड में नहीं मिलते। तो वैसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग को सिंबल्स लेने पड़ते। तो वेयर वी हैव द सिंबल, वी हैव टू द सिंबल्स इन इंसर्ट टैब एंड गो इन अ सिंबल्स फॉर ऑप्शन, सिंबल्स ऑप्शन, सिंबल्स ग्रुप में हमको सिंबल ऑप्शन मिलेगा। सिंपली क्लिक ऑन द सिंबल ऑप्शन एंड मोर सिंबल ऑप्शन, चूज द सिंबल विच यू वांट। देयर इज सो मेनी, बहुत सारे यहाँ पर हैं, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमको कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज दिस वन, I don't know what is the name of this one, so but I want to use this one. I am clicking the insert. Now you see this one is here. आ गया ना यहाँ पे. Now I want to use this one, this one. Now you see this one is here. So this is the way how can we use the symbol. एक बार symbol आपके पेज पे आ जाए तो उसके बाद उस पर हर चीज़ कर सकते हैं जो एक फॉन्ट के साथ कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हम उसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, ओके। उसका कलर चेंज कर सकते हैं। नहीं उसी उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है, इसका कलर भी चेंज करते हैं। नाउ वी कैन इजीली चेंज द कलर ऑफ दिस वन। सो ऑल द इफेक्ट वी कैन डू विथ द टेक्स्ट, वी ऑल्सो डू द सेम इफेक्ट ऑन द फॉन्ट ऑल्सो, sorry, on the symbol also. Now the last page is here is page break. अब हम this is the तक लिखें, लेकिन ये जो कंप्यूटर वगैरह COM है मैं इस पेज पे नहीं लिखना चाहता हूँ। So for doing this thing simply click on the page break option. ये हमको कहाँ मिलेगा? We have the page break option in insert tab in page groups. I am clicking here. Now you see this is here and form is here. So this is the way how can we use the page break option, okay. So I hope you understand all the things which I told you in this class. Thank you for watching.